Good morning, friends. Hope you are all fine. Friends, we have started with the topic, that organization of commerce, the chapter, right? And friends, we have started with the chapter nature and the scope of business. And up to here, we have learned what is economic activity, what is non-economic activity, right? Second thing we have learned is the what is business, what are the types of economic activity, characteristics of that, and then we have learned the objectives of the business. In that we have learned the economic objectives, right? So today, friends, we are going to learn what is a social objective. So let's see the first part. Ready, all of you? So, friends, let's start. Okay. So now, what is social objectives? Friends, it's very easy. When we talk about social, it means society. सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, some social objectives are given priority by the business for the benefit of the society. ऐसा बोला जाता है, अगर दूसरों का अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा ही होता है ना? It is said that if we do the good things to the others, obviously the God will do the good things to us. ये 100% सही बात है ना? हमें पता नहीं चलता है लेकिन हमें भी मदद मिल जाती है कहीं ना कहीं से. So friends, that they want to say, social objectives means when the business is benefiting the society. और बहुत तरीके हैं जिससे कि हम सोसाइटी को बेनिफिट कर सकते हैं. देखो, the existence of the business is not possible without society. हम सब जानते हैं. Sorry, क्या लिखा है? The existence of business is not possible without a society. बिना सोसाइटी बिजनेस नहीं चलेगा. Business is due to society. Therefore, the importance of objectives rather than the profit is accepted. Social objectives are below. Objective of social responsibility. देखो क्या लिखा है? It has become necessary for the business to be aware of the interest of different groups of society because of consumer awareness, state restrictions, consumer education, consumer association. देखो पहला पॉइंट इतना अच्छी तरीके से बोला है उन्होंने. क्या लिखा है, ध्यान दिया? It has become necessary for the business, यानी बिजनेस को जरूरी हो चुका है to be aware of the interest. इंटरेस्ट का मतलब सबको अपना अपना इंटरेस्ट रहता है. जैसे कि एक कंज्यूमर है, जैसे कि आप और मैं हूं, कंज्यूमर है हम लोग, तो हमें क्या चाहिए होता है? सोचो, हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस. अच्छी क्वालिटी का सामान हमें चाहिए होता है और उसकी कीमत भी वाजिब होनी चाहिए. ये हमारा पहली हमारी जरूरत है. It has become necessary for the business to be aware of the interest of the different groups of society. Different group मतलब अलग अलग groups के, because of consumer awareness. Consumer awareness मतलब आज consumer सब जानते हैं, राइट? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं. कंज्यूमर अवेयरनेस. स्टेट रिस्ट्रिक्शन. स्टेट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लेकर आते हैं. देखो भाई, ये सामान आप बेच नहीं सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, चेकिंग होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर. कंज्यूमर एजुकेशन. देखो बहुत सारे चैनल में, रेडियो में, टीवी चैनल में हमेशा कंज्यूमर एजुकेशन आता है. सुना होगा वर्ड भी आपने, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो. तो हमें ये देखना होता है, जैसे कि हम कोई दवाई की दुकान में जाते हैं तो हम दवाई में सबसे पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं कि भाई ये दवा एक्सपायरी डेट तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद वो दवा अगर यूज करेंगे हम तो वो दवा का काम नहीं करेगा, उल्टा जहर का काम करता है ना? तो ये सब सब जानते हैं. तो व्हाट दे वांट टू से फ्रेंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? It is become necessary for the business to be aware of the interest of the different groups of society because of consumer awareness, trade restrictions, consumer education and consumer association. Association बना के हम boycott भी कर सकते हैं कोई particular product का. देखो, different interest group और class of society, different groups होते हैं, अलग अलग क्लास के सोसाइटी. जैसे कि ऑनर, मालिक, एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, कस्टमर्स जो सामान खरीदते हैं,
क्रेडिटर्स जो सामान सप्लाई करता है, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। जैसे कि ऑनर का इंटरेस्ट क्या होगा, चलो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए और मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कि भाई मेरी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, मेरे काम भी मैं क्या बोलते हैं टाइम पे करूं और मेरे को पगार भी अच्छा मिले। कस्टमर, जैसे मैंने बोला, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट ए रीजनेबल प्राइस। क्रेडिटर्स कि भाई मुझे टाइम पे सामान का पैसा मिल जाए। गवर्नमेंट टैक्स बने, टैक्स आए जिससे कि देश का विकास हो एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद बिजनेस यूनिट। ये सब बिजनेस यूनिट के साथ जुड़े हुए हैं। and these different groups have different interest. मैंने अभी बोला वही है, these different groups have different interest with the business. It is necessary to take care of the interest of these different groups. बहुत जरूरी है कि सब अपने ये ग्रुप पे ध्यान दें, है ना, सब अपने हर एक के ग्रुप पे ध्यान दें. The purpose has to be obeyed by the maintenance of environment, Employee Welfare Act, Factory Act, Consumer Protection Act. मतलब कानून बना दिया है. तो क्या है कि एम्प्लॉय के साथ अगर ऑनर बराबर ट्रीट नहीं कर रहा है, उसको सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, व्हाटएवर, तो कोर्ट में जा सकता है. फैक्ट्री एक्ट उसके लिए, कंज्यूमर के लिए वैसे हमने प्रोडक्ट सामान ले लिया लेकिन कारणवश कुछ खराब हो गया, गलत हो गया, तो हम भी ये कर सकते, केस कर सकते. तो फ्रेंड्स क्या देखा हमने, सबसे पहले आज हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या लिखा है, इट इज बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू थिंक और टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. क्यों? बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन. डिफरेंट इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ पीपल, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल. जैसे कि ऑनर का मैंने बोला, एम्प्लॉइज मैंने बोला, कस्टमर्स मैंने बोले, क्रेडिटर्स मैंने बोले, गवर्नमेंट बोले, सबको अपना अपना इंटरेस्ट है. आर एसोसिएटेड विद बिजनेस यूनिट, आर एसोसिएटेड विद बिजनेस यूनिट, and these different groups have different interest with the. It is necessary to take care of the interest. बहुत जरूरी है कि वो ध्यान दे of these different groups. The business has to abide by. बिजनेस को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. अबाइड बाय द कौन से है, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कुदरत को नुकसान नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, एम्प्लॉय को फायदा ही फायदा होना चाहिए. फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, तो वापस एक बार फिर से, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज बिकम necessary for the business to be aware of the interest of different groups of society. क्या कारण है, due to consumer awareness, due to state restrictions, due to consumer education, due to consumer association. Different interest groups have different interests like customers, creditors, government, owners and employees are associated with business unit, and these different groups have different interests for the business. It is necessary to take care of their interest of these different groups. The business has to abide by, abide मतलब साथ में ही चलना पड़ेगा, abide by maintenance of environment, environment का maintenance, employee welfare act बराबर, factory act, consumer protection act. फिर लिखा है सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. राइट, हम जानते हैं कि हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है, वी आर डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नहीं है. तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो अपना वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर सकता, है ना. अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छे घर में रह नहीं सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन पाएंगे अच्छे वाले, मतलब बहुत सारी चीजों में उसको, राइट, क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है. इसलिए बोला है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी. तो हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट इसे दिया गया है कि चलो भाई सबको एम्प्लॉयमेंट देने का ऑब्जेक्टिव रखा है गवर्नमेंट ने. The unemployment ratio is increasing day by day.
है ना। आज ये सिचुएशन भी हो चुका है, कोरोना वायरस एंड ऑल, तो सिचुएशन थोड़ा खराब चल रहा है, लोगों के पास जॉब थोड़ा मुश्किल है, कोई नया जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है और जो पुराना है वो छूटता जा रहा है क्योंकि बिजनेस कम हो रहा है। Some business units are established with the objective to create new opportunities of employment. अब देखो क्लियर लिखा है, कोई कोई बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश तभी किया है, उसके लिए किया है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी इंडस्ट्रीज, रेलवे का इंडस्ट्री में देखो कितने लाख लोग काम करते हैं। बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सेकेंड लार्जेस्ट दूसरा जो एम्प्लॉयर होता है वो रेलवे है, इतने लोगों को काम देता है। मतलब जहां पे एक लोग की जरूरत है वहां पे 5 लोग काम करते हैं, तभी अपना रेलवे प्रॉफिट में नहीं आ पाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है चलो भले हम लॉस खा ले लेकिन लोगों को जॉब तो मिल रहा है। वैसे व्हाट दे वांट टू से, the unemployment ratio is increasing day by day, बढ़ता ही जा रहा है। Some business unit are established with the objective to create new employment of opportunities, new employment opportunities create करने के लिए बना है। एग्जाम्पल क्या है? खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री commission select those industry, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन select those industries which provide employment opportunities. Preference is given, मतलब preference मतलब महत्व देना, preference is given to the establishment of business unit in backward areas. समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? तो गवर्नमेंट भी उनको पहले परमिशन देते हैं कि आप अगर, क्या बोल रहे हैं, आप अगर, यस बोलो, आप अगर इंडस्ट्री बैकवर्ड एरियाज में सेट कर रही है। बैकवर्ड एरियाज का मतलब क्या होता है? ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, जहां पे लोग को काम नहीं मिल रहा है। गांव एरिया मतलब बैकवर्ड एरियाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। तो बहुत इजी चीज था। तो पहले क्या देखा हमने? मेन ऑब्जेक्टिव पहला तो देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या देखा उसमें? इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू बी अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द group of people in the society because of consumer awareness, state restrictions, consumer education, consumer association. Different groups of people society such as owners की बात कर लो, employees की बात कर लो, customers की बात कर लो, traders की बात कर लो, they are all associated with the business unit and these different groups have different interests and they take care of their interests. Right, and this business unit has to abide by the, किसका अवॉइड करना पड़ेगा? एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या है? द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ता ही जा रहा है। Some business unit are established with the objective of create new opportunities of employment. Some business unit are established with the objective to create new opportunities of employment. Example: Khadi and cottage industries commission select those industries. Khadi and cottage industries commission select those industries which provide more employment opportunities. Preference is given to the establishment of the business unit in backward areas to provide more employment to unemployed people. तीसरा है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने आपको बोला आज मार्केट में वही टिकेगा जो सामान और अपना सर्विस अच्छे भाव पे दे रहा है। इट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, देखो क्लियर लिखा है, इट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा है? इट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस in order to make them easily available to the people of the society. देखो क्या लिखा है? It is the objective to provide quality goods and services, quality goods and services in order to make them easily available to the people of the society so that they can satisfy their needs.
इट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा है, इट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम इजीली अवेलेबल, राइट, क्या लिखा है, इट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड quality goods and services in order to make them easily available to the people of society so they can satisfy their needs. Then units manufacturing spices. Spices पता है आपको, मसाले. The unit manufacturing spices used in cooking, खाने बनाने में, cold drinks में, food product में, have to maintain the standard of high quality. नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है ना. Business unit have social objective, are committed to provide goods and service at a fair price. Fair मतलब reasonable. That is delivery of goods at home after sale service, installation of goods. Installation मतलब AC खरीद लिया, washing machine खरीद लिया, तो घर पे आके क्या करते हैं, इंस्टॉल करके जाते हैं. ठीक है. तो फ्रेंड्स क्या क्या हमने पढ़ा. पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर एसोसिएशन है, कंज्यूमर एजुकेशन हो गया है, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं तो अलग अलग इंटरेस्ट रहता है और ये सब बिजनेस को देखना पड़ता है. दूसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारा देश का अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए. उसके लिए खादी एंड कॉटेज कमीशन को सेलेक्ट किया गया है कि आप ऐसे इंडस्ट्रीज लगाओ जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम बढ़ा सके. प्रेफरेंस उनको दिया जाता है जो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगा सकते हैं. फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस. आज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, क्वालिटी देना, सर्विस देना पीपल को, जिससे अपनी जरूरतें वो पूरा कर सके. एग्जाम्पल दे दिया कि जो मसाले बनाते हैं, जो कुकिंग में यूज करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, राइट, उनको हमेशा हाई स्टैंड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंड ऑफ क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है. Business unit having social objectives are committed to provide goods and service at a fair price. Example, delivery of goods at home after sale service and installation of goods. So ये objective to adopt fair trade practice. Reasonable price का अलग देखो क्या बोलना चाहते हैं. ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब बिजनेस होता है. अच्छी तरीके से आप काम करो, सीधे तरीके से काम करो तो आपको फायदा भी वैसे ही होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी. देखो, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स. ब्लैक मार्केटिंग पता है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि सामान को, गुड्स को, राइट, स्टॉक करके रखना, सामान सप्लाई नहीं करना, स्टॉक करके रखना. अब क्या होगा पता है, जब ऐसा कुछ करते हैं ये लोग, होर्डिंग बोलते हैं इसको, होर्डिंग, तो सामान जब वो लोग स्टोर करके रखते हैं एक जगह पे, तो क्या हो जाता है, यस, डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है. और हम रूल जानते हैं कि भाई डिमांड अगर बढ़ जाता है और सप्लाई हमारे सामने नहीं होता है तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना. ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स कहते हैं, राइट, आपने सुना होगा टिकट ब्लैक में बेचना. तो वो सब क्या हमने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, राइट. अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप कोई सामान लेने ले और मिल नहीं रहा है तो क्या होगा, ऐसे लोग आ जाते हैं, बोले हम आपको दे देंगे लेकिन आपको इसका भाव इतना देना पड़ेगा. उसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग ऑफ. एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, सामान को इकट्ठा करके रखना. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है ना, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा होता है. कल ही मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है, भाई स्पेस में अचार कम हो जाता है, स्पेस क्राफ्ट, ऊपर अंतरिक्ष में अचार कम हो जाता है, तो बेटा माँ को याद करता है, तो माँ अपने नौकर को, राइट, अपने तरीके से स्पेसक्राफ्ट में भेज देती है और अचार देकर आता है. तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, लोगों को बेवकूफ बनाना, एक्सेट्रा, आर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन बिजनेस. ये सब चीज चलता रहता है. तो फ्रेंड तीन चीज हमने पढ़ा, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. क्या क्या पढ़ा, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स, accumulation of goods and misleading advertisement. ये सब क्या है, unfair practices in business. ऐसा unfair practice.
Artificial scarcity of essential goods must not be created. Artificial scarcity कभी create नहीं करना चाहिए. Business unit must adopt the objective of fair trade practice. Fair का मतलब अच्छे तरीके से, for the welfare of the customer and the society. पता चला? तो 4 पॉइंट पढ़े हमने. Objective of social responsibility, objective to provide employment opportunities, objective of providing goods and service, objective to adopt fair trade practice. क्या क्या नहीं होना चाहिए? ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, बराबर. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं करना. अदर ऑब्जेक्टिव, तो आज का लास्ट टॉपिक है अदर ऑब्जेक्टिव्स. मतलब जो कैटेगरी में नहीं आता है. तो क्या लिखा है देखो. अदर ऑब्जेक्टिव्स आर टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन द सोसाइटी. सोसाइटी में अपना एक नाम हो कि चलो ये दुकान में अच्छा ही सामान मिलता है, मेरे को कोई चीट नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा क्वालिटी का सामान अच्छे प्राइस से मिल रहा है. स्पेशल आइडेंटिटी. टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में रिसर्च करना और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना. टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ाना. एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम. गवर्नमेंट को भी उसमें साथ में लेके चलना. To provide various incentives to employees. Employees को ही मदद देना. And execute welfare schemes for them. और उनको execute करना, welfare देना. What they want to say? To establish special identity in society. Identity society में अपना अलग सा नाम हो. To conduct research work हो अपने प्रोडक्शन में. To be helpful in the economic development of the nation. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो अपने देश का भी और साथ में हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें. इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज. अपने एम्प्लॉयज जो हमारे साथ काम करते हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से फायदा पहुंचाए और वेलफेयर स्कीम हम करें. तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है फ्रेंड्स. ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप इसको रिवाइज करो. ओके, थैंक यू. मीटिंग इन नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू. टेक केयर.